welcome to yet another video of Learning Science with Shristi. So in our last video we discussed about the human nervous system and its various parts. We discussed that it consists of three parts, that is the central nervous system, the peripheral nervous system and the autonomic nervous system. The central nervous system, further we discussed that it is composed of human brain and the spinal cord. So in this video we are going to discuss in detail about the human brain, that what are its various parts, what are the functions of its various parts. So without any further delay, let's begin with our today's topic. So human brain is a highly complex organ. We all very clearly know that the most complex organ of our body is our brain, because the nerve cells once damaged cannot be repaired, once injured cannot be repaired. So it is the highly complex organ of our body, and it is mainly composed of the nervous tissue. Mainly it is composed of what tissues? Nervous tissues and nerve cells. The tissues are highly folded to accommodate a large surface area in the less space. We know that nerve cells or the nervous tissues, as we say, they are the largest tissues in our body, and so they are highly folded to accommodate a large surface area in this less space. We know that our brain is not that large organ, so to accommodate those millions and billions of nervous tissue, these nervous tissues are highly folded so that they can accommodate in the small space or less space. The brain is covered by three layered system of membranes called meninges. उसके बाद जो हमारा ब्रेन है वो थ्री लेयर्ड मेम्ब्रेन सिस्टम से कवर्ड रहता है, जिसको हम मेनिंजेस बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? मेनिंजेस बोलते हैं. एंड इन मेनिंजेस के बीच में सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है. क्या होता है? सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है. ये जो फ्लूइड है बेसिकली इट हेल्प्स इन द प्रोटेक्शन एंड प्रोवाइडिंग अ कुशन टू आवर ब्रेन, जिससे कि हमारा ब्रेन जो है किसी भी तरीके के मैकेनिकल शॉक से, किसी भी तरीके के शॉक से क्या रहे? प्रिवेंटेड रहे. दैट इज़ वाई द CFS इज प्रेजेंट बिटवीन द meninges. Okay, so let us discuss these all things with the help of a diagram. So here is the diagram of our human brain. You can clearly see in this diagram that our brain is covered by three layered membrane system that is called meninges. You can see in this diagram clearly that there is a three layered membranes that is called meninges. These meninges help in the protection of our brain against any mechanical shock. How? Because they consist of cerebrospinal fluid in between them. They have cerebrospinal fluid in between them, which helps to protect the brain by providing a cushion to its structure. Okay, now also you can see in this diagram that our brain is divided into three main regions, that is the forebrain, the midbrain and the hindbrain. It is divided into three main regions, that is the forebrain, the midbrain and the hindbrain. So the forebrain is mainly composed of the cerebrum. Cerebrum is the largest part of our brain. Here you can see clearly that cerebrum is the largest part of our brain, and forebrain is composed of cerebrum. Now midbrain, you can clearly see here in this diagram that midbrain is composed of hypothalamus. It is composed of hypothalamus. Midbrain is composed of the structure called hypothalamus, and then comes the hindbrain, which is composed of three structures. You can clearly see in this diagram that the hindbrain is composed of three structures, and these structures are the pons, medulla and the cerebellum. These structures are the pons, medulla and the सेरेबेरम. सो आई होप कि ये जो मैंने भी पॉइंट्स बताए ब्रेन के बारे में, ये डायग्राम से ज़्यादा क्लियर हो गए होंगे. कि जो फर्स्ट पॉइंट वॉज कि हमारा जो ब्रेन है वो थ्री लेयर मेम्ब्रेन सिस्टम से कवर्ड रहता है. थ्री लेयर मेम्ब्रेन सिस्टम, दीज आर कॉल्ड मेनिंजेस, एंड बिटवीन दीज थ्री लेयर्स देयर इज cerebrospinal fluid which act as a cushion to protect our brain against any kind of mechanical shock and injury. And then our brain is divided into three main regions, that is the forebrain, the midbrain and the hindbrain. Okay, so the forebrain is composed of cerebrum, which you can see is the largest part of our brain. Then the midbrain is consist of hypothalamus. Midbrain is consist of hypothalamus, and then comes the hindbrain. You can see here, hindbrain is the lowermost portion of our brain, and it is consisting of pons, medulla and the cerebellum. Now let us discuss about all these structures in details, and then also discuss about their functions. So as discussed with the help of diagram, the human brain is divided into three regions, that is the forebrain, which is composed of cerebrum, midbrain, which is composed of hypothalamus, and the hindbrain, which is composed of cerebellum, pons and the medulla oblongata. Okay, now some main structures are explained here, like cerebrum, cerebellum, medulla oblongata and pons, and then hypothalamus, and we will also discuss their individual functions. So first of all, we will discuss about the largest part of our human brain, that is the cerebrum.
नाउ दिस सेरेब्रम इज डिवाइडेड इनटू 2 हेमिस्फीयर्स। ये जो सेरेब्रम होता है हमारे ब्रेन का, ये 2 हेमिस्फीयर्स में डिवाइडेड होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स बोलते हैं। दीज 2 हेमिस्फीयर्स आर इंडिविजुअली नोन एज द राइट एंड द लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स। नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ आवर सेरेब्रम? हमारे सेरेब्रम का फंक्शन क्या होता है? तो सेरेब्रम इट कंट्रोल्स ऑल आवर वॉलंटरी मोटर एक्शंस। हमारे जितने भी वॉलंटरी मोटर एक्शंस होते हैं उनको कंट्रोल करना सेरेब्रम का काम होता है। लाइक मूवमेंट ऑफ आवर हैंड, मूवमेंट ऑफ आवर लिम्स, दिस इज द फंक्शन ऑफ आवर cerebrum. It is controlled by cerebrum. Now it is the site of sensory perceptions like tactile and auditory. कोई टच का अगर हम फील करते हैं या फिर कोई ऑडिटरी हम कुछ सुन पाते हैं, सो दीज आर ऑल परसीव्ड विद द हेल्प ऑफ द सेरेब्रम। यानी कि ब्रेन में डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स है एंड डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स के हेल्प से हम डिफरेंट डिफरेंट परसेप्शन कर पाते हैं हमारे इन्वायरमेंट का। कोई किसी पर्टिकुलर फंक्शन में हेल्प करता है, कोई अनदर पर्टिकुलर फंक्शन में हेल्प करता है। सो all with the help of this brain, different regions of the brain, we are able to perform our various functions of day to day life. So our sight of sensory perceptions like tactile and auditory, tactile means touch perception, हम जो touch करके कुछ feel करते हैं, so that is perceived with the help of our cerebrum. Now it is the site of learning and memory. कभी भी अगर हम कुछ एग्जाम के टाइम पे पढ़ते हैं तो और कुछ लर्न करते हैं, सो वो हमारे माइंड में कंसीव्ड रहता है, वो हम याद करके रखते हैं, वो हमें याद रहता है। तो वो कहाँ पे याद रहता है? वेयर इज़ दैट स्टोर्ड? वेयर इज़ द थिंग विच वी हैव लर्न इज स्टोर्ड? सो दैट पार्ट इज स्टोर्ड इन आवर सेरेब्रम। वो हमारे सेरेब्रम में स्टोर्ड रहता है। जो भी हम पढ़ते हैं, जो भी इन्फॉर्मेशन हम पढ़ते हैं, याद करते हैं, वो सब कहाँ पे स्टोर्ड रहता है? हमारे सेरेब्रम में स्टोर्ड रहता है। सो अगर किसी की कभी मेमोरी चल जाती है, दैट मीन्स कि उसका सेरेब्रम क्या है, अफेक्टेड है, इंजर्ड है या फिर डैमेज है। ओके, नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द सेकेंड पार्ट, दैट इज द सेरेबेलम। सेरेबेलम जो है इट लाइज बिलो द cerebrum and at the back of the whole structure। यानी कि cerebrum के नीचे होता है and it is at the back of our whole structure of brain। now यहाँ पे मैं एक एग्जांपल देती हूँ। ये हमारे मोटर फंक्शंस को कोऑर्डिनेट करता है। मोटर फंक्शंस को कोऑर्डिनेट करने का एग्जांपल लाइक फॉर एग्जांपल व्हेन वी राइड अ बाइसिकल, कभी हम लोग किसी बाइसिकल को राइड करते हैं, सो देयर इज़ अ कोऑर्डिनेशन बिटवीन आवर पेडलिंग एंड स्टीयरिंग कंट्रोल। हम अपने हैंड से स्टीयरिंग को कंट्रोल करते हैं एंड अपने फीट्स के थ्रू पेडल करते हैं, तो उन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन रहता है। अगर वो कोऑर्डिनेशन नहीं रहेगा तो अल्टीमेटली वी विल फॉल एंड गेट इंजर्ड। सो वो कोऑर्डिनेशन किसके हेल्प से रहता है? दैट कोऑर्डिनेशन इज कंट्रोल विद द हेल्प ऑफ आवर सेरेबेलम। So what is the function of cerebellum? First of all it controls our motor action, it coordinates our motor action। हमारे motor action का coordination जो है वो cerebellum के through होता है। It also controls our posture and balance, हमारे body के posture को and balance को, क्योंकि हम चलते चलते गिर ना जाए। ये कौन इंश्योर करता है कि हम चलते चलते ना गिरे और हमारा जो posture है body का वो proper straight रहे, maintain रहे। that is all controlled with the help of the cerebellum। It also controls precisions of voluntary action, यानी कि कितने precisely हम वॉलंटरी एक्शन कर रहे हैं। राइट लेग्स रख रहे हैं, फिर उसके बाद लेफ्ट लेग रखते हैं, वन मतलब एक लेग देन दूसरा लेग, ये सारा जो है वो मेंटेन रहता है। हम किस तरीके से अपना हैंड का मूवमेंट करते हैं, ये सारा जो है कंट्रोल होता है विद द हेल्प ऑफ द सेरेबेलम। नाउ कम्स द हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस इज मिड ब्रेन का पार्ट होता है एंड इट लाइज एट द बेस ऑफ द सेरेब्रम। सेरेब्रम के बेस पे जो है हाइपोथैलेमस प्रेजेंट होता है। सो हाइपोथैलेमस का बहुत ही ज़्यादा मेजर फंक्शन होता है हमारे बॉडी में, बहुत सारे फंक्शंस को कंट्रोल करता है, बट यहाँ पे आपको सिर्फ 2-3 इंपॉर्टेंट फंक्शन जानने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारे स्लीप एंड वेक साइकिल को मेंटेन करता है। हम कब सोते हैं, कब उठते हैं, दैट इज़ ऑल मेंटेन विद द हेल्प ऑफ आवर हाइपोथैलेमस। अगर कभी हमें रात में नींद नहीं आ रही है, वी आर हैविंग स्लीप इशूज़, इसका मतलब यही है दैट अवर हाइपोथैलेमस इज अफेक्टेड, वो प्रॉपर वर्क नहीं कर पा रहा है। देयर इज अ प्रॉब्लम विद आवर हाइपोथैलेमस बिकॉज इट ओनली कंट्रोल्स आवर स्लीप एंड वेक साइकिल और ऑल्सो नोन एज द कार्डियक रिदम। इट ऑल्सो कंट्रोल्स द अर्जेस फॉर ईटिंग एंड ड्रिंकिंग। कभी भी हमें भूख लगती है या फिर प्यास लगती है, सो दैट इज ऑल कंट्रोल विद द हेल्प ऑफ हाइपोथैलेमस। वो सारा हमारे हाइपोथैलेमस के कंट्रोल में होता है। नाउ देन कम्स द मेड्यूला। Medulla forms the brain stem along with the pons। So brain stem is the lowermost portion of our brain and ये जो है मिल के pons के साथ brain stem बनाता है। ये ब्रेन के बेस में प्रेजेंट होता है एंड कंटिन्यूज इनटू द स्पाइनल कॉर्ड। जैसा कि हमने पहले भी ब्रेन के डायग्राम में देखा कि मेड्यूला लोअर मोस्ट पोर्शन में आता है, हाइंड ब्रेन का पार्ट है वो नीचे वाले पोर्शन में आता है। सो ऑब्वियसली ये ब्रेन के बेस में है एंड इट कंटिन्यूज इनटू द स्पाइनल कॉर्ड। नाउ मेड्यूला का भी कुछ मेजर फंक्शंस है। ये हमारे जितने भी इनवॉल्यूंटरी फंक्शंस होते हैं उन सबको कंट्रोल करता है, लाइक हार्ट बीट हो गया, रेस्पिरेशन रेट हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, हमारा सलाइवेशन हो गया, वॉमिटिंग हो गया। मेड्यूला इज ऑल्सो नोन एज अ वॉमिट सेंटर बिकॉज हमारा जो वॉमिटिंग है, हम जो वॉमिट करते हैं दैट इज ऑल कंट्रोल विद द हेल्प ऑफ मेड्यूला। सो मेड्यूला हमारे बॉडी के इनवॉल्यूंटरी फंक्शंस को क्या करता है, कंट्रोल करता है। नाउ लास्टली
pons is there, and what is the major function of pons? So it relays impulses between the lower cerebellum and spinal cord and higher part of brain like cerebrum, midbrain, and also regulates the respiration. So जैसे मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि रिले का मतलब है ट्रांसमिशन, यानी कि इम्पल्सेस का ट्रांसमिशन. तो ये हमारे ब्रेन के लोअर पार्ट से हायर पार्ट में इम्पल्सेस का ट्रांसमिशन करता है और हमारे रेस्पिरेशन रेट को क्या करता है, कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है. रेस्पिरेशन रेट यानी कि ब्रीदिंग इन ऑफ ऑक्सीजन एंड ब्रीदिंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड, इसको ये रेगुलेट करता है. कौन रेगुलेट करता है? पॉन्स रेगुलेट करता है. सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पॉन्स? फर्स्ट ऑफ ऑल इट विल रिले इम्पल्सेस बिटवीन द लोअर पार्ट एंड द हायर पार्ट ऑफ आवर ब्रेन. लोअर पार्ट में क्या क्या आ जाता है? सेरेबेलम एंड स्पाइनल कॉर्ड विल बी द लोअर पार्ट, बिकॉज सेरेबेलम जो है हमारे हाइंड ब्रेन का पार्ट है, हाइंड ब्रेन जो है लोएस्ट रीजन है हमारे ब्रेन का, एंड हायर पार्ट हमारे ब्रेन के हैं सेरेब्रम एंड द मिड ब्रेन. सो उनके बीच में इम्पल्सेस का रिले करना, ट्रांसमिशन करना, ये पॉन्स का काम होता है. सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो स्टूडेंट. हमने ह्यूमन ब्रेन के बारे में जो है ब्रीफली डिस्कस कर लिया है और इतना ही जो है आपके एग्ज़ाम के लिए सफिशिएंट है. सो इसको आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ गया हो. अगर कुछ नहीं समझ में आया हो तो डू लेट मी कमेंट कर देना कमेंट सेक्शन में, एंड अल्टीमेटली मैं आपकी क्वेरी जो है नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करने की कोशिश ज़रूर करूँगी. एंड ऑल्सो अगर आपको कोई और टॉपिक जो है इस टॉपिक के पहले पढ़ना हो तो डू लेट मी नो दैट ऑल्सो. ओके, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.